shortest remaining time first, right? Also called shortest remaining job first, right? So we will do example of shortest remaining time first. Shortest remaining time first, and in this case we are going to have, this is also called shortest remaining preemptive shortest job first, right? So we are going to write that over here. This is also called preemptive shortest job first. So in this case what we do is that we schedule the shortest job first, and then at every time instant we see which job has the shortest remaining time, and whichever job has shortest remaining time we will schedule that job first, right? So let's start with an example. We write over here, we write process, then we write P1, P2, P3, P4 and P5, just the same examples that we had in previous ones. Let's make a table. Over here we will write what do you call it, arrival times, and after that we will write the burst durations, right? We will write some, let's adjust the things a little bit. So we will adjust this to this side and no. So okay, so we will write arrival times, and then let's see a little bit, adjust it a little bit so that everything is crystal clear, and then we write the burst duration. So let's have some random burst durations. For example, the first one has burst duration of 10 milliseconds, 10 time units. The second one has burst duration of 13 time units. The third one has time duration of 5 time units. Fourth one has burst duration of maybe let's see 15 time units, and the fourth one has time duration of 2 time units. Let's have like this, okay? Let's have different examples in different cases. I will give you assignment in which there will be different time durations for different protocol, for different types of scheduling algorithms, and you can solve the examples, and then you will understand how will the एग्जाम क्वेश्चंस कम। मैं आपको थोड़ा उर्दू में बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा जो है वो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो एग्जांपल्स हम एक केस में दे रहे हैं उसको बाकी केसेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, और जब आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा दूसरे केसेस पे अप्लाई करने का, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आपको आ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम थोड़ा अराइवल टाइम्स लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग लिखते हैं कि प्रोसेस P1 जो है उसका अराइवल टाइम है टाइम T इज इक्वल टू 15, दूसरे का अराइवल टाइम जो है वो है टाइम T इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम टेबल बना सकें। टाइम T इज इक्वल टू 7 पे आया है, तीसरा वाला आया है टाइम T इज इक्वल टू 24 पे, चौथा वाला आया है आपका टाइम T इज इक्वल टू 2 पे, टाइम T इज इक्वल टू 5 पे मे बी, और पांचवा वाला रख लेते हैं टाइम T इज इक्वल टू 35 पे। थोड़ा सा एग्जांपल हमारी जो है थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी डाइवर्स हो जाएगी, तो हमारे पास थोड़ा समझने के लिए ज़्यादा चीज़ें आएंगी। इस टेबल को हम थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस बर्स्ट ड्यूरेशंस। इसके अंदर फिर हम रिमेनिंग टाइम जो है वो काट के हम साथ में लिख लिया करेंगे, ठीक है? जो रिमेनिंग टाइम होगा वो हम बर्स्ट ड्यूरेशन को
हम कट किया करेंगे और हम यहाँ से जिस तरह पहली एग्जांपल्स में करते रहे बर्स्ट ड्यूरेशन को हम रिमेनिंग बर्स्ट ड्यूरेशन को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं चीज़ों को। लेट्स ड्रॉ द लाइंस प्रॉपरली। यहाँ से हमने लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए हमने किया और फिर हमने ये हमारा टेबल बना लिया हमने 3 more lines and then we'll be done, ठीक है। 3 more lines and then we'll be done with this example, with this question, right? Let's have some vertical lines too. So ये हमारा जो है वो टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। नो वरीज, हम इसको जो है वो वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो इसको देखते हैं कि अब इसका हमें गैंट चार्ट बनाना है। वी स्टार्ट फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम जो है वो हर टाइम इंस्टेंट पे हमें चेक करना है। वी हैव टू चेक एट एवरी टाइम इंस्टेंट whether to keep scheduling the same job or to change the schedule time, right? यहाँ पे ये हमारा गैंट चार्ट है, इसको हमें देखना पड़ेगा। We have to see this is our Gantt chart और scheduling chart, scheduling timeline, इसको हम scheduling timeline भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा गैंट चार्ट है। अब हमें थोड़ा सा हर टाइम इंस्टेंट पे देखना है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 लेबल कर लेते हैं, सबसे ज्यादा आसान है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या लेबल होगा हमारा, हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब शुरू करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास सिस्टम में कोई भी जॉब नहीं है। द फर्स्ट अराइवल टाइम इज टाइम t इज इक्वल टू 5। अब ये रिमेंबर वन थिंग, the system will keep checking at every time instant whether a job has arrived or not। एक जॉब आई है या नहीं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करेगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करेगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। और जब 5 पे आएगा तभी उसे पहली जॉब नजर आएगी। तो यहाँ पे हम बड़े आराम से इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हम यहाँ से 0 से लेके 5 तक हम बिल्कुल इसको जो है वो खाली जाने दें और ये बिल्कुल हम यहाँ पे लाइन लगा दें और टाइम t इज इक्वल टू 5 पे हमारा पहली जो हमारी जो है स्केड्यूलिंग हो यहाँ पे होगी। इससे पहले कोई प्रोसेस सिस्टम में आया ही नहीं है। एट टाइम t इज इक्वल टू 5 हम चेक करेंगे प्रोसेस P4 सिस्टम में मौजूद है और उसकी बर्स्ट ड्यूरेशन जो है 15 मिली सेकेंड्स की है, तो वो स्केड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास P4 जो है वो स्केड्यूल हो जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू 5। P4 स्केड्यूल हो गया, प्रोसेस P4 स्केड्यूल हो गया। अब टाइम t इज इक्वल टू 6 पे दोबारा चेक करेगा सिस्टम और टाइम t इज इक्वल टू 6 पे सिस्टम में एक ही जॉब है P4। टाइम t इज इक्वल टू 6 पे सिस्टम में एक ही जॉब है P4 और उसकी रिमेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 14 है। 15 से जो है वो कम होकर 14 हो चुकी होगी, राइट। तो जाहिर है एक ही जॉब है तो उसको वो कंटिन्यू करेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 7 पे वो दोबारा चेक करेगा और देखेगा कि सिस्टम में कितने प्रोसेसेस मौजूद हैं। अब देखिए टाइम t इज इक्वल टू 7 के ऊपर ये बन चुका होगा, ये हो चुका होगा 13, ठीक है, ये हो चुका होगा 13 और जो नया प्रोसेस है वो भी t इज इक्वल टू 7 के ऊपर, टाइम t इज इक्वल टू 7 के ऊपर उसका भी बर्स्ट ड्यूरेशन 13 होगा। अब क्या करें, दिस इज अ टाई। अब हम कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर टाई होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो एक तरीका तो ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दें हम, यानी जो पहले आया जिसका अराइवल टाइम पहले हम उसको पहले सिस्टम पे जगह देंगे। दूसरा तरीका ये होता है
कि हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रोसेस सिस्टम प्रोसेसर पे मौजूद है, द प्रोसेस विच इज ऑक्यूपाइंग द सिस्टम, उसको हम कंटिन्यू करें. रिमेंबर, if two processes have same burst duration left, then we have to find another way. इस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी रखे तब भी P4 की बारी बनती है, और जो प्रोसेसर पे मौजूद है उसको कंटिन्यू करने से भी P4 की बारी बनती है. अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर हम प्राइमरी क्राइटेरिया क्या रखेंगे कि अगर कोई दो प्रोसेसेस में टाई हो जाता है और एक प्रोसेस सिस्टम पे मौजूद है, रनिंग स्टेट में मौजूद है, तो हम उस प्रोसेस को नहीं हटाएंगे. वी विल नॉट टेक ऑफ दैट प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसर. इसकी रीजन मैं बता देता हूं, सिंपल सी. इसकी रीजन ये है कि आप लोग जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में आपका सिस्टम ज्यादा से ज्यादा वक्त ना लगाए, बल्कि यूजर के प्रोग्राम को जगह दे. अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा तो यूजर के प्रोग्राम को तो जगह नहीं मिलेगी. तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमाइज करने के लिए पहला क्राइटेरिया ये रखते हैं कि अगर कोई प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब है, और वो प्रोसेसर पे मौजूद भी है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी. और उसके बाद सेकंड पॉइंट हम ये रख लेते हैं कि अगर दो प्रोसेसेस दोनों का रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट है और दोनों प्रोसेसेस सिस्टम पे मौजूद नहीं है, यानी दोनों रेडी क्यू में हैं, फिर हम ये कहेंगे कि ठीक है, जो पहले आया है वो पहले सर्व हो. अभी इसको ठीक है, इतना ज्यादा इस पे जो है वो आप गौर ना करें, आप एग्जांपल पूरी देख लें तो आपको जो है वो चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पे तो मैं सिर्फ आइटरेट कर रहा हूँ. आई एम आइटरेटिंग द क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू यूज, राइट. अच्छा, तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 7 पे हमने कहा कि P4 जो था ऑलरेडी सिस्टम पे मौजूद था और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को हम मिनिमाइज करना चाह रहे थे, इसलिए हम जो सिस्टम पे मौजूद है उसे कंटिन्यू करेंगे. तो टाइम t इज इक्वल टू 7 पे भी P4 चलता रहेगा. टाइम t इज इक्वल टू 8 पे देखेंगे तो इसका बर्स्ट ड्यूरेशन 12 हो चुका है. ठीक है, इसका अभी भी 13 है. इसी तरीके से टाइम t इज इक्वल टू 9 पे देखेंगे, इसका बर्स्ट ड्यूरेशन और कम हो गया है. P4 का बर्स्ट ड्यूरेशन जो है वो 11 रह जाएगा. तो हम इसी तरीके से, जाहिर बात है, जिसको हमने टाइम दिया है उसका बर्स्ट ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा, तो शॉर्टेस्ट जॉब वही होगा. ठीक है, हमें पता है कि अगर हमने शॉर्टेस्ट जॉब को टाइम दिया है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब टाइम जो है वो प्रोसेस जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है, हमने उसको जो है वो सिस्टम पे जगह दी है. तो जाहिर बात है अगले टाइम इंस्टेंट पे उसका रिमेनिंग टाइम और कम हो जाएगा, और इस तरह से उसकी प्रायोरिटी मजीद बढ़ती चली जाएगी. तो ये तो कोई इशू नहीं है. हम जो है वो यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस सिस्टम में मौजूद है वो चलता चला जाएगा अंटिल ये कि कोई और प्रोसेस सिस्टम में आ ना जाए. अब नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज प्रोसेस P1 which will come at time t is equal to 15, right? So we can schedule P4 until time t is equal to 15. हम टाइम t is equal to 15 तक P4 को शेड्यूल कर देते हैं, क्योंकि until time t is equal to 15 P2 और P4 में से शॉर्टेस्ट जॉब P4 ही होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, और हमने जो है वो इसका रिमेनिंग टाइम जो था हमारा 5 से लेके 15 तक 10 टाइम यूनिट्स के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ है. तो इसका रिमेनिंग टाइम जो रह गया है वो रह गया है 5. रिमेनिंग टाइम इज ऑफ P4 इज अगेन 5. दोबारा बता देता हूं, हमने शुरू से स्टार्ट किया 0 से 5 तक हमारे पास
कोई प्रोसेस नहीं था, तो हमारा सीपीयू यूटिलाइज ही नहीं हुआ। एट टाइम t इज इक्वल टू 5 एक ही प्रोसेस था सिस्टम में, वो हमने जो है वो P4 को जगह दे दी सिस्टम पे। एट टाइम t इज इक्वल टू 7 P2 P4 हमारे पास प्रोसेस था जिसका टाइम ड्यूरेशन, जिसका अराइवल टाइम 5 था। दूसरा प्रोसेस हमारे पास था विच वाज P2 जिसका अराइवल टाइम 7 था। एट टाइम t इज इक्वल टू 7 इन दोनों का रिमेनिंग टाइम जो था वो 13 टाइम यूनिट्स था। तो हमने प्रायोरिटी दी P4 को और उसको कंटिन्यू कर दिया until the arrival time of next process। नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम 15 था, तो हमने जो शॉर्टेस्ट जॉब थी उसको वहां तक हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको टाइम t इज इक्वल टू 15, सॉरी ये हमने जो गलत कर दिया है कुछ, हमने 5 से लेके 15 तक इसको शेड्यूल करना था एंड इट वाज फॉर टाइम 10 टाइम यूनिट्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको 15 लेवल करना था, हमने गलती से यहाँ पे इसको 10 लेवल कर दिया। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 15। सही है, 5 से लेके 15 तक 10 टाइम यूनिट्स के लिए P4 चला और उसका रिमेनिंग टाइम जो है 15 से गिरते गिरते 5 तक आ गया। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 15 हम चेक करेंगे सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। सिस्टम में प्रोसेसेस अगेन P4 था, P2 था, एट टाइम t इज इक्वल टू 15 सिस्टम में P4 है, P2 है और P1 है। इनका रिमेनिंग ड्यूरेशन आप देखें, रिमेनिंग ड्यूरेशन P1 की 10 है, P2 की 13 है और P4 की 5 है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि P3 और P5 की ड्यूरेशन कम है, लेकिन ये अभी तक सिस्टम में आए नहीं है। अराइवल टाइम के बाद ही हम शेड्यूल कर सकते हैं, अराइवल टाइम से पहले शेड्यूल नहीं कर सकते। एक प्रोसेस जब सिस्टम में आएगा उसके बाद ही शेड्यूल होगा। तो P3 और P5 अभी तक सिस्टम में आए नहीं है, तो हमें क्या करना है, P4 को ही हम शेड्यूलिंग कंटिन्यू करेंगे until the arrival time of next process। अराइवल टाइम ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, 24 है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है 24 से पहले पहले हमारा P4 जो है वो सिस्टम में अपना एग्जीक्यूट होकर चला जाएगा। तो हम P4 की जो स्केड्यूलिंग है उसको आगे बढ़ा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है वो यहाँ पे भी आपका P4 आ जाएगा और यहाँ पे हम जो है वो लिख लेंगे दिस इज गोइंग टू बी 20, यानी कि 5 से लेकर 20 तक 15 टाइम ड्यूरेशन के लिए P4 चल गया था। और बहुत आसान है, इसको हम रहने दें 15 और इसको, या फिर चलो दोबारा से हम जो है वो P4 को लेबल कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों टाइम ड्यूरेशन में P4 को मिली है, टुकड़ियों में मिली है, डिसीजन बीच में करना पड़ा, वॉट हमने कर लिया। ठीक है, अब इसका जो रिमेनिंग टाइम है दिस इज गोइंग टू बी 0 और टाइम t इज इक्वल टू 20 पे हमारे पास सिस्टम में दो प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2। P3 और P5 तो अभी सिस्टम में आए नहीं है, तो जो शॉर्टेस्ट जॉब है दैट इज P1। P2 के रिमेनिंग ड्यूरेशन 13 है, P1 की रिमेनिंग ड्यूरेशन 10 है। तो जो शॉर्टेस्ट जॉब है उसको हम जो है वो शेड्यूल कर लेते हैं, और शॉर्टेस्ट जॉब को शेड्यूल कब तक करेंगे, जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम नहीं आ जाता। नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम 15 के बाद 24 है। तो फ्रॉम t इज इक्वल टू 20 टू t इज इक्वल टू 24 हम P1 को शेड्यूल करेंगे, दैट इज द शॉर्टेस्ट जॉब एट द करंट टाइम, राइट। तो हम इसको उठाएंगे और P इज इक्वल टू 20 से लेके 24 तक हम जो है वो शेड्यूल कर देंगे। P1
सॉरी P1 को शेड्यूल कर देंगे, दैट वाज द शॉर्टेस्ट जॉब, और यहाँ पे हमारे पास 24 तक P1 शेड्यूल हो गया, 24 तक P1 शेड्यूल हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि 4 टाइम यूनिट्स हम इसके अराइवल, इसके जो बर्स्ट ड्यूरेशन है उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 टाइम ड्यूरेशन ये चल चुका है, ठीक है ना। तो इसका जो रिमेनिंग टाइम है दैट विल बिकम इक्वल टू 6, राइट। अब टाइम t इज इक्वल टू 24 पे हम देखेंगे सिस्टम में कितने प्रोसेसेस हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 24 सिस्टम में इस वक्त P1 मौजूद है विद रिमेनिंग बर्स्ट ऑफ 6, P2 मौजूद है विद रिमेनिंग बर्स्ट ऑफ 13, और P3 मौजूद है विद रिमेनिंग बर्स्ट ऑफ ओनली 5। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब जो है वो P3 है इस टाइम पे, दैट इज ऑफ 5 टाइम यूनिट्स। तो हम इसको शेड्यूल कर लेंगे until the arrival time of next process, that is 35। लेकिन हमें पता है कि P3 जो है वो 35 से पहले ही, टाइम t इज इक्वल टू 35 से पहले ही अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके जा चुका होगा। इसको सिर्फ, क्योंकि इसको सिर्फ 5 टाइम यूनिट्स चाहिए, तो सीधी सी बात है हम 5 टाइम यूनिट्स के लिए इसको स्केड्यूल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ से इसको t इज इक्वल टू 24 से लेके t इज इक्वल टू 29 तक हम इसको स्केड्यूल कर देंगे, और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी P3, राइट, P3, राइट। P3 हमारा जो है वो रिमेनिंग टाइम इसका 5 से 0 हो गया, बहुत सिंपल है। शॉर्टेस्ट जॉब आई थी, नई जॉब आई थी जिसकी रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट था, हमने उसको शेड्यूल कर दिया until the arrival of time of next process। until the arrival time of next process, उसका पहले ही बीच में जो है वो कंप्लीट हो गया उसका सिलसिला, और उसका रिमेनिंग टाइम जो था वो 0 रह गया, राइट। अब इसको हम देखेंगे दोबारा से कि हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल टू 29 कितने प्रोसेसेस हैं सिस्टम में जो मौजूद है। P4 कंप्लीट होके जा चुका है, P3 कंप्लीट होके जा चुका है। देयर आर ओनली 2 प्रोसेसेस इन द सिस्टम, P1 एंड P2। देयर आर ओनली 2 प्रोसेसेस इन द सिस्टम, P1 एंड P2। रिमेनिंग टाइम ऑफ P1 इज लेसर, so we will schedule P1 until the arrival time of next process। यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है 35, उस वक्त तक हम P1 को शेड्यूल कर देंगे। अब लेट्स सी हाउ लकी वी आर, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो 35 t इज इक्वल टू 35 पे आएगा, और P1 की 6 ही ड्यूरेशंस रह गई हैं, टाइम ड्यूरेशंस। तो 29 से लेकर 35 तक P1 अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा। तो हम यहाँ पे इसको स्केड्यूल कर लेते हैं फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 29 टू टाइम t इज इक्वल टू 35। हमारा P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारे पास गैंट चार्ट के अंदर पूरा हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ से इसका जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। अब टाइम t इज इक्वल टू 35 पे देखिए कि सिस्टम में कितने प्रोसेसेस मौजूद हैं। टाइम t इज इक्वल टू 35 पे जो प्रोसेसेस मौजूद हैं दे आर प्रोसेस P2, प्रोसेस P5, बाकी प्रोसेस P1, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4 हैव ऑलरेडी लेफ्ट द सिस्टम। इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट जॉब है हम उसको पहले शेड्यूल करेंगे, और जाहिर है शॉर्टेस्ट जॉब P5 है, और अगला कोई प्रोसेस है ही नहीं जिसको आना है, तो हम जो है शॉर्टेस्ट जॉब को उसके रिमेनिंग जो ड्यूरेशन है उसके लिए शेड्यूल कर देंगे, और that will be equal to from time t is equal to 35 to time t is equal to 37 हमारे पास P5 शेड्यूल हो जाएगा। आसान है ये।
तो लेट्स डू द राइट थिंग फर्स्ट। P5 शेड्यूल हो गया, यहाँ पे हमने लिखा 37 और हमारा P5 कंप्लीट हो गया। उसको हमने जो है वो काट दिया और ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 0। और फिर हमारे पास सिस्टम में एट टाइम t इक्वल टू 37 एक ही जॉब बची जिसका रिमेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 13 टाइम मिनट्स का है। तो हम उसको शेड्यूल कर देंगे फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 37 टू टाइम t इक्वल टू 50 और हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। P2 टाइम t इक्वल टू 37 टू टाइम t इक्वल टू 50। ठीक है, और इसका हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं और टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे इसको 0 लिख लेते हैं। हमारा रिमेनिंग जॉब जो है वो 0 रह गई और हमारा काम कंप्लीट हो गया।